سے برکت پائیں گے۔ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ جو آج بات شیئر کرنے والا ہوں وہ بڑی خاص بات ہے، اور وہ ایک ایٹیٹیوڈ کے بارے میں ہے، ایک رویے کے بارے میں ہے جو اکثر اوقات ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، خدا ناراض ہو جاتا ہے، خدا جو ہے وہ ہم سے الگ ہوتا ہے، اس کا روح ہم سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور وہ رویہ کون سا ہے؟ وہ رویہ ہے ریبیلین نیچر، ریبیلین اسپرٹ، ریبیلین ایٹیٹیوڈ۔ ریبیلین کہتے ہیں گستاخانہ رویہ، یا خدا کے خلاف کھڑے ہونا، یا اس کی بات کو نہ ماننا، اس کی باتوں کو، اس کے حکموں کو، اس کے کلام کو رد کرنا۔ جب ہم اس کی باتوں کو رد کرتے ہیں، اس کے کلام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ہے ہمارا ریبیلین ایٹیٹیوڈ، ہمارا بیہیویئر ہے کہ ہم خدا کی بات کو سننا نہیں چاہتے، ہم خدا کی بات کو ماننا نہیں چاہتے۔ اور آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ خدا کیا چاہتا ہے، اور انسان کی جو نیچر ہے، جو سنفل نیچر ہے، وہ اسے کس طرف ڈریگ کر کے لے کے جاتی ہے۔ آئیے آج ہم دیکھیں گے اس چیز کے لیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب میں سے اس کا 13واں 14ویں باب کے اندر بڑی خاص باتیں لکھی گئی ہیں، اور اس وقت کی باتیں ہیں جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے نکل کر جو ہے قادیس کا علاقہ ہے، قادیس وہ ایریا ہے جہاں پہ یہ کنعان کا بارڈر ہے، اور اس بارڈر پہ یہ پہنچتے ہیں 2 سال کے اندر۔ ان کو مصر سے نکلے ہوئے 2 سال ہوتے ہیں اور یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جب یہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، خدا جو ہے وہ بزرگ موسیٰ کو کہتا ہے کہ بھائی اس ملک کا حال دریافت کرنے کے لیے کیا کرو، وہاں پر جاسوس بھیجو۔ اور چونکہ یہ 12 قبیلے تھے، اس لیے خدا نے کہا کہ ہر قبیلے میں سے ایک سردار لو اور ان کو بھیجو۔ تو ٹوٹل 12 لوگ جو تھے وہ جاسوس بنا کے انہوں نے بھیجے کنعان کے اندر، تاکہ وہ وہاں کے حالات کے مطابق، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، کیا وہ گھروں میں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، جھونپڑوں میں رہتے ہیں، وہاں کا پھل کیسا ہے، وہاں کی جو ہے یعنی کھیت کیسے ہیں، ہر ایک چیز کو دیکھنے کے لیے اس نے ان کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ۔ اور ان میں سے 12 لوگ چنے گئے۔ لیکن کیا ہوا کہ یہ جو ہے جب یہاں پہ 2 سال کے اندر پہنچے ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں جب وہ واپسی آتے ہیں تو ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے۔ ان میں سے جو 10 لوگ تھے انہوں نے آ کے یہ خبر دی، پہلے انہوں نے اچھی خبر سنائی، پہلے کہا جی کہ وہ ملک تو بڑا ہی خوبصورت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ بہت زبردست قسم کا پھل ہے، وہاں کی پیداوار بہت اچھی ہے، اور وہاں کا موسم بڑا اچھا ہے۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد انہوں نے کہا کیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے طاقتور ہیں، وہ جبار ہیں، یعنی جائنٹس لوگ ہیں وہاں پر بستے ہیں، اور وہ اتنے بڑے اور طاقتور زوراور لوگ ہیں کہ ہم ان کے سامنے ٹڈوں کی مانند ہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم تو بالکل ان کے خلاف جنگ لڑ نہیں سکتے۔ لیکن ان 10 کے میں سے، ان 12 میں سے 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہم ان کے اوپر قبضہ کر لیں گے، ہم اس ملک کو لے لیں گے، کیونکہ خدا نے جو ہے وہ ان کو مصر سے نکالا تاکہ یہ اس لینڈ میں پہنچے۔ اب خدا نے انہیں بولا کہ اپنے جاسوس بھیجو اور پتہ کرو تاکہ تم اس ملک پہ چڑھائی کرو، تاکہ تم اس ملک کے لوگوں کے اوپر چڑھائی کرو، اور تم جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جب قبضہ کرنے جا رہے ہو تو پہلے وہاں کی تھوڑی انفارمیشن لے لو۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور اب یہاں پر کالب اور یشوع جو ہے، یہ 2 ایسے بندے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہم ان لوگوں کو اپنے قبضہ میں کر لیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، یہ 10 لوگ لوگوں کا دل توڑ دیتے ہیں، لوگ رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں، لوگ بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ 14ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا، چیخنا شروع کر دیا، لوگوں نے رونا شروع کر دیا، لوگ موسیٰ اور ہارون کے سامنے شکایت لے کے آگے کہ کیوں تم ہمیں یہاں پر لے آئے، کیوں تم نے ہمیں مصر سے نکالا کہ ہم یہاں پر آ کے مرے، ہمارے بچے جو ہیں وہ مال کا جو ہے لوٹ مال کا جو ہے وہ لوٹ کا مال ٹھہریں گے، ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں گی، ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی، کیونکہ انہوں نے ان کو ڈرا دیا، 10 جو جاسوس تھے انہوں نے ان کے اندر جو ہے وہ ڈر اور خوف پیدا کر دیا۔ اب غور کرنے والی بات یہاں پہ جو ہے وہ دیکھیے
ये पूरी जमात जो तकरीबन 6 लाख के करीब बनते हैं जब ये मिस्र से निकलते हैं, तो यहां तक पहुंचते हुए ये 6 लाख लोग थे तकरीबन। इन्होंने 10 लोगों की बात को सुना, लेकिन 2 लोगों की बात को नहीं सुना। इन्होंने क्या किया जी? मेजॉरिटी को सुना, जो 10 लोग कह रहे थे, लेकिन जो 2 लोग कह रहे थे इन्होंने उसको ना सुना। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, मेजॉरिटी के अक्सर फैसले गलत होते हैं। वो लोग नुकसान उठाते हैं जो मेजॉरिटी के पीछे जाते हैं। यीशु ने कहा जो खुदा की तरफ रास्ता जाता है वो सुकड़ा है, लेकिन जो जहन्नम की तरफ जाता है, जो रास्ता अबलीस का है, वो कुशादा है और हर कोई उस रास्ते पे जाना चाहता है। लेकिन जो सुकड़े रास्ते पे आने वाले लोग हैं वो बड़े थोड़े हैं। और आज भी ऐसा ही है। इस्राएली भी यही काम कर रहे थे, क्योंकि खुदा ने उन्हें कहा था कि अब तुम्हें आगे की तरफ बढ़ना है, लेकिन वो उन 10 लोगों की बात मान रहे थे जिन्होंने उन्हें बताया कि वो लोग बड़े ताकतवर हैं। इन्होंने क्या किया? खुदा की पीछे सारे किए हुए मुजज़ात को भूल गए। खुदा ने किस तरह इनको जो है वो बहरे कुलज़म में से निकाला, किस तरह जब वो फौज उनके सर पे खड़ी थी, फिर किस तरह खुदा इनके आगे आगे चलता रहा। दिन में वो बादल का सतून होता, रात को वो आग का सतून होता। वो उनके लिए आगे आगे जाके जगह ढूंढता कि कहां पर ये खैमाजन होंगे। उनके लिए रस्ते में पानी प्रोवाइड किया, उनके लिए रस्ते में खाना प्रोवाइड किया, उनके कपड़े नहीं फटे। वो जैसे जैसे कद्दो कामत में बढ़ते उनके साथ उनके कपड़े भी बढ़ते जाते। मेरे अजीजों, इन लोगों ने क्या किया? उस वक्त के हालात पे निगाह की, अपने खुदा पे निगाह नहीं की। इस वजह से वो क्या करने लगे? बुड़बुड़ाने लगे। वो खुदा के खिलाफ खड़े हो गए, खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगे कि हमें यहां पर मारने के लिए लाया गया है, हमारी जिंदगियों को तबाह करने के लिए लाया गया है। और उन्होंने उस मेजॉरिटी की बात मानी जो गलत रास्ते पे थी, जिसने गलत थॉट, जिसने गलत जो माइंड उनका जो है वो सेट किया। और इस वजह से क्या हुआ? खुदा को भी इनके ऊपर गजब आ गया। तो मैं आपको ये अजीजों बताना चाहता हूं कि यही जो 2 साल में पहुंचे थे, टोटल जो रास्ता है हुरब से लेके केनान तक का, वो 11 दिन का सफर था मेरे अजीजों। लेकिन इसराइल की गलतियों की वजह से ये 2 साल के अंदर वहां पर पहुंचे थे। 2 ईयर इनको लगे। लेकिन जब इन्होंने यहां पर खुदा का हुक्म नहीं माना, इन्होंने उस मेजॉरिटी की बात को सुना, तो फिर खुदा ने क्या किया मेरे अजीजों? खुदा ने उन्हें बोला वापस फिर बियाबान के रास्ते पे चलो। और अब जब तक जितने लोग 20 साल के ऊपर के हैं मर नहीं जाएंगे, यहीं पर तुम्हारी लाशें जो है वो बियाबान में होंगी, यहीं पर तुम मरोगे। और खुदा ने 38 ईयर्स यानी 38 साल उनको फिर बियाबान में घुमाया। अब जो डेस्टिनेशन जब उनकी सामने थी, वो मुल्क जिसका वादा किया गया था, वो इंटर होने वाले थे। अब उनको उसमें जाके कंकर करना था। लेकिन खुदा को जब ये बात ना पसंद आई, तो उसने क्या किया? उन्हें कहा चलो वापस फिर लगाओ चक्कर बियाबान के। और बियाबान के अंदर वो वापस उनको ले गया। और तब उनको 38 ईयर लगे, यानी 38 साल लगे उनको उस वादा की हुई सरजमीन में पहुंचने के लिए। मैं आपको अजीजों बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो खुदा के प्लान के खिलाफ काम करते हैं, जो खुदा को अपनी जिंदगी में काम नहीं करने देते। और जो चीजें उनकी जिंदगी में 6 महीने में होनी है या 1 साल में होनी है, उनकी गलतियों की वजह से, उनकी बुड़बुड़ाहट की वजह से, उनकी शिकायतों की वजह से वही बरकत कई सालों पीछे चली जाती है। शायद वो 10 साल बाद आए, शायद वो 5 साल बाद आए, शायद वो 15 साल बाद आए। क्यों? क्योंकि डिले की स्पिरिट ना फरमानी की वजह से उनकी जिंदगी में इंटर हो जाती है। गुनाह की वजह से उनकी अंदर जो है वो ना फरमानी की स्पिरिट जो है वो इंटर करती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। अब क्या है कि एक और यहां पर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि ये लोग जो खड़े हैं, इनके अंदर डिसर्नमेंट की स्पिरिट नहीं है। डिसर्नमेंट का मतलब है कि ये परख नहीं सकते कि किन के साथ खुदा खड़ा है और किन के साथ नहीं। मेजॉरिटी का फैसला तो इन्होंने मान लिया, लेकिन मेरे अजीजों खुदा उस मेजॉरिटी के साथ नहीं खड़ा था। उसके साथ कौन खड़ा था? उसके साथ अबलीस खड़ा था। अबलीस की थॉट थी, अबलीस की सोचें थी। इसलिए बहुत सारे मसीही धोखा खाते हैं, उनको ये पहचान नहीं रहती कि खुदा किसके साथ खड़ा है। खुदा उस पूरी बड़ी जमात के साथ नहीं खड़ा था, बल्कि खुदा किसके साथ खड़ा था? खुदा उसके कालब के साथ और यीशुआ के साथ खड़ा था वहां पर, और वो पहचान ना पाए।
आज भी बहुत सारे लोग हैं जो डिसर्नमेंट नहीं कर पाते। आज हमें खुदा का रूह दिया गया है जो हमें रूहों का इम्तियाज करना सिखाता है। कितने लोग हैं जो आज रूह को मांगते हैं कि खुदा बाप मुझे जो है वो डिसर्नमेंट की स्पिरिट दे, मुझे जो है वो पहचान करने की, रूहों का इम्तियाज करने की स्पिरिट दे। और इन्होंने ये नहीं देखा कि खुदा किस तरफ खड़ा है। आपको याद होगा कि पीछे जब बुजुर्ग मूसा 40 दिन के लिए कोहे सीना पे जाता है तो नीचे सारी जमायत जो है वो बुत परस्ती करने लग जाती है, और खुदा सिर्फ मूसा के साथ खड़ा होता है, पूरी जमायत के साथ खड़ा नहीं था। वहां पे कई लोग मरे। आज भी ऐसा है, लोगों को देखने की जरूरत है। कलीसिया को, आज के चर्च को देखने की जरूरत है कि कहां पर खड़े होना है। बड़े बड़े चर्च जो हैं वो इस बात का तयन नहीं करते कि ये रूहानी चर्च है। लाखों की तादाद में मेंबर होंगे, हजारों की तादाद में मेंबर होंगे, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि क्या ये वाकई स्पिरिचुअल चर्च है। आप गौर करें, देखें, यीशु मसीह का चर्च सिर्फ 11 लोगों पे मुश्तमिल था। 12वें ने गलती की और वो जाता रहा, लेकिन 11 लोगों के ऊपर यीशु का चर्च। आज कितने लोग हैं ऐसे जो सही रास्ते पे खड़े हैं, जो सही तौर पे खुदा के हुक्म को मानते हैं। मेजोरिटी को फॉलो मत कीजिए मेरे अजीजों। मेजोरिटी आपको जो है वो डिस्ट्रॉय करवा सकती है, आपको खुदा के प्लान से बाहर लेके जा सकती है। भेड़ चाल जो है, अक्सर हम देखते हैं कि हम भेड़ चाल चलते, एक के पीछे सारे के सारे चलते। अगर उसने किया मैं भी कर रहा हूं, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, ये सब के सब ऐसे ही। लेकिन मेरे अजीजों, पहचानिए, खुदा की आवाज को पहचानिए, डिसर्नमेंट की स्पिरिट को पहचानिए कि खुदा आपको कहां पर खड़ा करता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। आगे जब चलते हैं तो हमें यह देखने की जरूरत है कि जो लोग ईमान पे खड़े हैं, कौन सा बंदा ऐसा है जिसकी साइड पे खुदा खड़ा होता है, कौन सा इंसान ऐसा है। यहां पर हम देखते हैं कि कौन ऐसे लोग थे जिनके साथ खुदा खड़ा हुआ। उसमें से यशुआ और कालिब थे। लेकिन ये कौन से ऐसे लोग हैं जो खुदा जिनके साथ खड़ा होता है, ये हमें गौर करने की बात है। वो इंसान जो मैन ऑफ फेथ होगा, जो ईमान में खड़ा होने वाला शख्स होगा। लोग अपनी ताकत पे भरोसा कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों खुदा पे भरोसा कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि हमारा ईमान है कि खुदा जिसने हमें मुल्क मिस्र से निकाला, फिरौन के हाथ से आजादी दी, गुनाह की घर से निकाला, लानत के घर से निकाला, आज हमें वो अब वादा की हुई सरजमीन में दाखिल करने को है। लेकिन यहां पर मैन ऑफ फेथ जो है, बहुत दफा ऐसा है कि मैन ऑफ फेथ वही हो सकता है जो खुदा की आवाज को पहचान सकता है, जो सच्चाई पे खड़ा होता है, जो ट्रुथ पे खड़ा होता है, जो खुदा के साथ खड़ा होता है। वही मैन ऑफ फेथ है, क्योंकि फेथ के अंदर खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम हर चीज को ईमान से हासिल करते हैं मेरे अजीजों। अगर हम एग्जाम्पल देखें मरकस की अंजील के अंदर, तो हमें खूबसूरत एग्जाम्पल मिलती है बरतमाई की। वो बड़ी आवाज से जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, ए इब्ने दाऊद, ए यस्सु, मुझ पर रहम कर। और यस्सु से बुला के कहते हैं, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। वो कहता है, मैं ये चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं। मेरे अजीजों, उसने यस्सु के कभी मोजज़ात नहीं देखे थे आंखों से होते हुए। उसने कभी यस्सु को जो है वो शिफा देते लोगों को नहीं देखा। कभी यस्सु को उसने 5000 को खाना खिलाते हुए नहीं देखा। लेकिन उसने सिर्फ सुना था, उसके अंदर ईमान था। और वहां पे कई लोग ऐसे थे उस भीड़ में जो यस्सु के आगे पीछे थे। कई शरा के आलम थे, कई और लोग थे, कई यस्सु के शागिर्द थे, लेकिन स्टिल डावाडोल थे। उनका ईमान इस बात पे पक्का नहीं था। लेकिन इस अंधे का ईमान पक्का था कि यही वो इब्ने दाऊद है, यही वो मसाया है जो मेरी आंखों को खोल सकता है, मेरी ब्लाइंडनेस को दूर कर सकता है। आज देखें कितने मसीही ऐसे हैं जो रूहानी तौर पे अंधे हैं, जिनकी आंखें नहीं खुली हुई, ये जानते नहीं हैं कि हमारा यीशु जो हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है, हमारे गुनाहों को माफ करने की कुदरत रखता है, हमें जो है वो नई जिंदगी, एटर्नल लाइफ देने की कुदरत रखता है। और वही दे सकता, कोई दूसरा नहीं दे सकता।
बहुत सारे लोग आज भी इस चीज से वाकिफ नहीं है कि यीशु मसीह ही नजात दहिंदा है, यीशु मसीह ही मैसाया है और वही अपने लोगों को छुड़ा सकता है। मेरे अजीजों, यहां पर इन लोगों को देखिए कि वो मैन ऑफ फेथ के साथ खड़े नहीं हुए। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैन ऑफ फेथ के साथ, जो लोग ईमान की बात करते हैं उनके साथ खड़े नहीं होते, और जब नहीं खड़े होते तो फिर उसका क्या रिजल्ट निकलता है, वो उस वादा की हुई सरजमीन में दाखिल नहीं हो पाते। क्योंकि खुदा यहां पर जब हम देखते हैं, लोग आजकल मसीहियत के अंदर जो है वो बहुत सारी जो है वो क्या कहना चाहिए कंप्रोमाइजेस हमें नजर आती हैं, बहुत सारी जगह के ऊपर कंप्रोमाइजेस नजर आती हैं। सच्चाई की तालीम सुनने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते कान खुज बायस, जिस तरह खुजली के बायस उनके कान जो है वो सुन नहीं पाते सच्चाई को, यही बात है कि सच्चाई को सुनने के लिए खड़े नहीं होते। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हक पर मबनी है, खुदा का कलाम सच्चाई है, और उसको सुनने के लिए जरूरी है कि इंसान को खुदा के ताबे होना चाहिए। ने क्या किया है, इंटेलिजेंट लोगों से, प्रोफेसरों से खुदा ने क्या किया है, अपने कलाम के भेद उन पे नहीं खोले, बल्कि बच्चों पे उसने आश्कारा कर दिए हैं। खुदा ने दुनिया के जिंदा किया है, ताकि दुनिया के हकीमों को छोड़ा है, और खुदा ने ऐसे लोगों को लिया है जो अनपढ़ और जो जाहिल थे, जो वहां पे फिशरमैन थे उस वक्त। खुदा ने गमलीएल के स्टूडेंट नहीं लिए, खुदा ने गमलीएल को नहीं लिया, प्रोफेसरों को नहीं लिया, बल्कि खुदा ने मच्छरों को चुना, और खुदा ने अपना कलाम उन तक पहुंचाया। एक गैमलियल का स्टूडेंट लिया, और वो कौन था जी, पालूस रसूल। उसको भी ये खुदा ने भेजा, जा भाई 3 साल बियाबान में रह, ताकि तेरी प्रोफेसी निकले, तेरा अंदर जो प्रोफेसर पन है, या तेरे अंदर जो एक बड़े लीडर और टीचर होने का पन है, वो बाहर निकले, और जब तू फिर दोबारा उस लेवल पे आए तो मैं तुझे अपने लिए इस्तेमाल करूं। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे मामलात हैं। एक पॉइंट और बोल के फिर मैं बंद करना चाहता हूं। खास बात याद रखिए, इन लोगों ने, बनी इसराइल ने क्या किया, 10 दफा खुदा को आजमाया, खुदा के खिलाफ गए, उसके खिलाफ खड़े हुए, उसके प्लान्स को चेंज करने की कोशिश की, खुदा के अगेंस्ट बोले। खुदा ने 9 दफा इनको चांस दिया, पर 10वीं दफा अब क्या हुआ, ये आखिरी मौका था, और खुदा ने कहा नहीं, अब तुम यहीं पर रहोगे। खुदा ने मिस्र से लेके कदीस बर को 10 चांस दिए। 10वें चांस में खुदा ने आके कहा अब ये नहीं हो सकता, अब तुम इंटर नहीं करोगे उस सरजमीन में, क्योंकि इन्होंने खुदा की माफी का नजायज फायदा उठाया, खुदा की फॉरगिवनेस को नाचीज जाना। आज भी ऐसा ही है, लोग गलतियों पे गलतियां, खताओं पे खताएं करते जाते। खुदा हर बार माफी का मौका देता है, हर बार माफी का मौका देता है। मेरे अजीजों, हो सकता है ये आखिरी मौका हो, याद रखिए ये आखिरी मौका हो, इसके बाद दोबारा तौबा का मौका ना मिले, ये वो वादा की हुई सरजमीन में दाखिल ना हो पाए, अपनी हट धर्मी की वजह से, अपनी नाफरमानी की वजह से, रिबेलियन नेचर की वजह से। आज बहुत सारे ऐसे हैं जो यीशु को कबूल नहीं करते। आज बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते, यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं कबूल करते। और अगर वो नहीं करेंगे तो मेरे अजीजों, हो सकता है आज का दिन उनका आखिरी चांस हो, आज का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी हो। इसके बाद वो दोबारा खुदा की बादशाही में शायद दाखिल ना हो पाए, क्योंकि हमारा खुदा हमसे प्यार और मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि हम सब इटर्नल लाइफ में जाएं, इसलिए वो हम सबको मौका देता है, हम सब के लिए उसने टाइम दिया है। लेकिन अजीजों, हो सकता है किसी के पास मौका ना हो सकता है किसी के पास आखिरी मौका हो। आज सोचने की जरूरत है कि जो कुछ मेरी जिंदगी में है, क्या ये खुदा के ताबे है, क्या मैं खुदा के हुक्म के ताबे हूं, क्या मैं अपनी जिंदगी से उसके नाम को जलाल दे रहा हूं, क्या मेरे कामों से यीशु दूसरों तक पहुंच रहा है, यीशु के नाम को इज्जत और जलाल मिल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आज सोचें, आज की रात अपने गुनाहों, खताओं, गलतियों से तौबा कीजिए, ताकि खुदा आपको वादा की हुई सरजमीन, यानी उस शहर यरूशलेम में, उस बादशाहत में जिसका उसने वादा किया है, जहां पर यीशु ने जाके हमारे लिए जगह तैयार की है, वो हमें लेने को आएगा। आज रात तैयारी दिन है, इस वक्त तैयारी का दिन है, ताकि आज फिर आप वैसे ही वापस ना जाएं जैसे इस मीटिंग में आए हैं। आज आपको बदलने का दिन है, आज आपके खानदान के बदलने का दिन है, आज आपकी खताओं और गलतियों के मिटने का दिन है, जाने का दिन है। यीशु के लहू को अपने ऊपर लीजिए, और यीशु का लहू आपको आजाद करेगा, खुदावंद आपकी खताओं को माफ करेगा। मसीह यीशु जो है वो आपका कफारा है, वो शाफी है, वही आपको बचाने वाला है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके खानदानों को बरकत दे। यीशु के कदूस नाम में ये दुआ, ये कलाम हम खत्म करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।